Hello students, welcome to the channel. So here I have brought class 9th video of chapter 3, which is improvement in food resources, and today I am going to discuss the topic animal husbandry. So let's begin. So first of all, what is animal husbandry? Animal husbandry is the process in which we rear the animal to obtain animal product like milk, eggs and meat, and while getting these product from the animals we have to care of all the facilities and necessities of the animals. So animal husbandry not only include the production of different kind of animal product, but it also involves all the care which animals need for the living. So to get the products from animal, we care and we raise the animals, and this is called animal husbandry. In another words, the branch of agriculture related to the scientific management of animal livestock is known as animal husbandry. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल को साइंटिफिकली मैनेज करते हैं सो दैट वी कैन एनहांस द फूड प्रोडक्शन. इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, फीडिंग, डिजीज़ कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. इसमें ये सारा कुछ आता है कि एनिमल्स की ब्रीडिंग प्लस फीडिंग, एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिजीज़ कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. The various elements of animal husbandry are listed below. Let's see the elements of animal husbandry. Proper feeding of animal. अगर आप जानवरों को पाल रहे हो तो उनकी प्रॉपर फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल. एनिमल्स कहाँ रहेंगे उनके लिए प्रॉपर शेल्टर की व्यवस्था ज़रूरी है. प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट डिजीज़. बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो जानवरों में लग जाती हैं, तो उन बीमारियों से भी जानवरों को केयर करना है, बचाना है. देन प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल. जो भी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो प्रोसेस भी उस प्रोसेस को भी हमें ध्यान में रखना होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. On the basis of utility, animal husbandry is important for the following reasons. What are these reasons? To increase milk production. आपको पता है मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, तो increasing milk production, to increase egg production, to increase meat production by rearing high meat yielding animals, to increase production of edible and economically important fish, to properly utilize animal waste for economic purpose. जो एनिमल, जब भी हम एनिमल्स को पालते हैं तो उसे वेस्ट जो होता है उसका भी हम अगर इकोनॉमिकल यूज़ करें तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा. It helps in producing good quality, high yielding breeds of domestic animal. As a result, the production of food from animal is increased. Our objective of animal husbandry is to increase the production of food. It also helps in the proper management of domestic animal and is beneficial for the farmer as his income from them is increased. Animal husbandry के थ्रू जो farmers है अपनी income को क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं. It also helps in increasing the quality of food product from animal, thereby increasing the availability of nutritious food. Now we'll talk about the nutritional value of animal food. जो एनिमल से हमें फूड मिलते हैं उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो क्या न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं. Animal food is generally rich in protein. For example, milk and milk products are rich in protein content and are highly nutritious. ज़्यादातर जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है बहुत अच्छी होती है, एनफ होती है. एंड जैसे मिल्क में आप देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड डी, वाटर एंड मिनरल सच अ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. तो आप देख सकते हैं कि एनिमल फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस. Now we will talk about the one branch of animal husbandry, that is cattle farming.
कैटल फार्मिंग के बारे में हम जानेंगे. वाई वी डू कैटल हस्बेंड्री फॉर टू पर्पसेस. दो रीज़न की वजह से हम कैटल फार्मिंग करते हैं. फॉर गेटिंग मिल्क एज अ फूड. कैटल में हम जानवरों को पालते हैं. एक तो हमारा इसका मोटो होता है मिल्क एज अ फूड, और दूसरा फॉर एग्रीकल्चरल टास्क सच एज टीलेज, इरिगेशन एंड कार्टिंग. On the basis of the above mentioned criteria, the animals can be divided into the following two categories. दो कैटेगरी में एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं. मिल्क यील्डिंग एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल. मिल्क यील्डिंग एनिमल वो एनिमल्स होंगे जिनसे हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, और ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं मिल्च एनिमल या डेयरी एनिमल्स. ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल हैं जिनको हम फॉर्म लेबर के लिए यूज़ करेंगे. लेबर में मतलब काम करवाने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे प्लगिंग वगैरह में हम बैलों को यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट एनिमल. तो दो पर्पज़ से हम कैटल फार्मिंग करेंगे. इंडियन कैटल्स बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज़. अगर इंडिया के कैटल्स की बात करें तो दो मेन स्पीसीज़ हैं. एक है बॉस इंडिकस जिसको हम लोग काऊ बोलते हैं, और दूसरा है बफेलो बॉस ब्यूबेलिस. ठीक है. द फीमेल कैटल प्रोवाइड मिल्क विच इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट्स एनिमल प्रोटीन टू द डाइट ऑफ पीपल. फीमेल जो कैटल होती है जब वो बेबीज़ को प्रोड्यूस करती है तो बेबीज़ को फीड करने के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करती है. दैट मिल्क we use in our diet. The production of milk depend upon the duration of lactation period. कोई भी फीमेल कैटल कितने टाइम तक कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी ये डिपेंड करता है उसके लैक्टेशन पीरियड पे. लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड इज़ द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ. जब भी कोई गाय जो है वो काफ को जन्म देगी तो या बफेलो, फीमेल बफेलो, तो ये डिपेंड करता है कि बर्थ कब है, और आफ्टर द बर्थ जो होता है वो काउस या बफेलो जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती है. तो अगर हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज़ कर दें तो मिल्क प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. देर आर मेनी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज अवेलेबल इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड इज गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हमारी कंट्री में हैं, गायों की भी और बफेलोज़ की भी, जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिलता है. एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड एंड प्रोवाइड अस गुड क्वांटिटी ऑफ मिल्क. देखिए हमारे वहाँ जो गाय हैं उनकी क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक्जॉटिक यानी कि जो फॉरेन कंट्री की जो ब्रीड्स हैं, जो वैरायटी ऑफ कैटल है, उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा है, तो वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट में मिल्क देती है. द लोकल ब्रीड शो एक्सेलेंट रेजिस्टेंट टू द डिजीज़. और जो लोकल ब्रीड्स होती हैं वो बीमारियों से बचने के लिए उनके पास एक्सेलेंट रेजिस्टेंस पावर होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, इन कैटल की जो ये वैरायटीज़ हैं इनके बीच हम क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं बिटवीन द एक्जॉटिक ब्रीड एंड लोकल ब्रीड टू गेट द एनिमल विद बोथ द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़. ठीक है. जो मान लीजिए कि दो ऐसी कैटल हैं, एक के पास जो है ज़्यादा लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है और दूसरा रेजिस्टेंस टू द डिजीज़ है, तो दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें, दोनों के बीच में हम क्या करवा दें, क्रॉस ब्रीडिंग, तो हमें जो नेक्स्ट प्रोजेनी मिलेगी, नेक्स्ट एनिमल मिलेगा, उसमें ये दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे. तो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले कैटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इंडिजिनस और लोकल ब्रीड ऑफ कैटल की बात करें तो साहिवाल, गिर, रेड सिंधी एंड थरपारकर, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल. यू कैन सी द पिक्चर एज वेल. दिस इज़ द गिर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड थरपारकर. नाउ एक्जोटिक ब्रीड्स क्या ऑफ कैटल क्या होंगी. एक्जोटिक ब्रीड मतलब वो ब्रीड जो है वो जो हम दूसरे देशों से हमने इंपोर्ट किया है, मंगवाया है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्जोटिक ब्रीड. जैसे हॉलिस्टन, फ्राइजन, जर्सी, ब्राउन स्विस एट्सेट्रा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्विस ब्राउन स्विस, दिस इज़ द ब्राउन स्विस एंड दिस इज़ द जर्सी. Okay, this is the Jersey and this is the brown Swiss and this is the Holstein. तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या एक्जोटिक ब्रीड है, ये हम फॉरेन से इंपोर्ट करवाते हैं. Improved breed of cattle in India. Certain improved breed of Indian cattle have been developed by making a cross between indigenous cows with high milk yielding exotic breeds of bull.
द इम्प्रूव्ड हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउ डेवलप इन इंडिया आर फेरिजवाल, करन स्विस, करन फ्राइज। ये हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू जो इंडिजिनस और जो एक्जोटिक थे दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा के ये हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो कैटल की प्रोड्यूस की है, फेरिसवाल, करन स्विस एंड करन फ्राइज। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो हॉलिस्टन है और ये क्या है, थरपारकर। दोनों के बीच में हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है, तो जो एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का जो हमें कैटल मिला है दैट इज़ करन फ्राइज। ठीक है, इसमें इसकी भी कैरेक्टर होंगे और इसका भी कैरेक्टर होगा। नाउ विल टॉक अबाउट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल। डेयरी एनिमल की फूड रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि जब हम उसको पालते हैं तो उनके फूड के बारे में हमें पता होना चाहिए। If they are domesticated, they must be fed fodder and grain. The animal food must be rich in nutrients for maintaining good health and for production of milk. Maintenance requirement में this include food for normal metabolic activities required to support the animal to live a healthy life. एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि ये लैक्टेशन पीरियड में ये हमें फूड प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये जनरल नॉर्मल डेज में और ये लैक्टेशन पीरियड में आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ। द एनिमल फूड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस। 2 टाइप के सबस्टेंस होते हैं एनिमल फूड में, रफेज एंड कंसनट्रेट। रफेज क्या है, कोर्स एंड फाइब्रस स्ट्रॉ मटेरियल है जिसमें न्यूट्रिएंट तो बहुत कम होता है, लो होता है, लेकिन उसमें रफेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द एनिमल्स गेट रफेज इन द फीड फ्रॉम हे, भूसा खिलाते हैं, फॉडर ऑप्टेन फ्रॉम बरसीम, काउपी, हस्क ऑफ ग्राम, व्हीट, राइस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देते हैं। इसमें बहुत सारे रफेज होते हैं जो उनके डाइजेशन के में हेल्प करते हैं। दूसरा जो है वो कंसनट्रेट है। कंसनट्रेट में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिच होते हैं प्रोटीन में, ताकि जो हमें मिल्क मिले वो अच्छे क्वालिटी का हो, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी हो। कंसनट्रेट में हम क्या खिलाते हैं, ग्रेन्स, सीड, ऑयल सीड केक, ओके, crude fiber, high amount of protein and other nutrient. The cattle need a balanced ratio of all nutrient in appropriate amount. सारा जो भी उसमें कंपोनेंट है वो सारा बैलेंस रेशियो में होना चाहिए। इन एडिशन टू रफेज एंड कंसनट्रेट, सर्टेन फीड एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो सप्लाइड इन द डाइट ऑफ द कैटल। द फीड एडिटिव्स कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ द डेयरी एनिमल। इसके अलावा जो हम नॉर्मली हम कैटल्स को देते हैं उसके अलावा भी हम एडिटिव्स भी ऐड करते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं। डू यू नो अ काउ ऑन एन एवरेज नीड 15 to 20 kg of green fodder and roughage, 4 to 5 kg of grain mixture and 30 to 32 km of water every day. The daily requirement of feed for high milk yielding cow may be even more. Proper cleaning and shelter facilities. We must protect our animal from extreme environmental conditions like heat, rain and cold. Thus, for rearing animal, we must provide them proper shelter and clean them regularly. Proper हमें shelter provide करना है और उनकी सफाई भी regularly हमें करनी होती है। डोमेस्टिक एनिमल शुड बी रेगुलरली ब्रश टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। उनके बालों को रेगुलरली झाड़ना चाहिए ताकि उसमें से जो डस्ट वगैरह है, डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। दे शुड बी केप्ट इन वेल लाइटेड शेल्टर विद प्रॉपर वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई एंड हाइजीनिक डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. The floor of the rearing shelter should have a proper slope so that water can drain easily and floor stays dry to facilitate cleaning. This will help in maintaining proper health of the animals and getting a good and clean milk yield. अगर हम जानवरों को पालते हैं और उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते तो हमें उससे कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो फ्लोर का स्लोप है, जो फ्लोर है वो स्लोपी होना चाहिए ताकि वाटर आसानी से ड्रेन हो जाए और उससे क्लीनिंग बनी रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एनिमल शेल्टर। कोई भी आइडियल जो शेल्टर होता है एनिमल का, उसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इट शुड बी सिचुएटेड एट एन एंगल प्लेस विद गुड सराउंडिंग। ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सराउंडिंग्स अच्छी हो, गुड हो, नाइस हो। इट शुड प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एक्सट्रीम वेदर। जानवरों को उस शेड से प्रॉपर केयर होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए गर्मी से, ठंडक से, बारिश से, एक्सट्रीम वेदर से। इट शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। शेल्टर कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और उसमें हवा का जो एयर का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड गेट प्रॉपर सनलाइट ड्यूरिंग द डे एंड शुड बी प्रॉपरली एयरेटेड। हवा का पास होना बहुत ज़रूरी है, एयर
एयर का प्रॉपर एनफ अमाउंट में होना, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, प्लस सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ। तो ऐसी जगह पे शेल्टर हो जहाँ पे धूप भी अच्छी खासी पहुँचती हो। इट शुड हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड आउटलेट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग एनिमल एक्सक्रीटा। शेड से जो है वो प्रॉपर तरीके से मेथड होने चाहिए एंड अरेंजमेंट होनी चाहिए, ताकि जो भी वेस्ट निकलेगा एनिमल से तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। It should be spacious enough for each animal to stay comfortably and avoid overcrowding. जगह भी अच्छी खासी होनी चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, और हर एक जानवर को, हर एक एनिमल को प्रॉपर स्पेस मिले उठने बैठने घूमने के लिए। So this is all for the cattle farming. In the next video we'll talk about the fisheries. Till then, thank you. Have a nice day.